but you can take point one and you can introduce me and Dr. Padmana Bhuni, and then do the questioning. I will actually kind of drive and talk to All right. Dr. Srinivas and take it forward. Yep. Looks okay overall, the points which are put together? Yes, sir, they are fine, sir. Are we having anything tomorrow at the same time, or today will be the only one? We have tomorrow as well, sir. We have scheduled it for tomorrow also. All right, good. So we have also, that will be a little bit more technical, but at a very basic level. So I'll ask most of the technical people to be present. Yes, that'll be better. This is more generic for everyone, kind of give them a feel of what is it all about AI and everything. Sure, sir. Noted, sir. Okay. We can start, sir, now. We can start, right? Okay. Bhagwati? We can start. Yeah, sure, sir. Over to you. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you, everyone, for connecting with us today. Today's session is about artificial intelligence, or someone call it as machine intelligence, a branch of computer science specifically focused on making machines work independently. The objective of AI is to have simulation of human intelligence and machines and think and act like humans. Presently, we give give examples on present scenarios, like giving inputs to machines such as requesting for a print command or giving a voice command to Alexa. Imagine when machines can adapt and act as per the situation on their own. So what kind of a world it would be. So to give us a glimpse about that, what artificial intelligence is, what is machine learning is, we have two prominent guests with us, Dr. Srinivas Padmana Bhuni. He is an AI expert, and Dr. Surya Anil Ghosh. Mr. Ghosh is social entrepreneur. So Rishikesh sir, I'll give it to you so you can have this session moderate with our guests. Thank you so much, Bhagwati. It's my pleasure to introduce the two speakers today. Good afternoon to one and all. This is one of the sessions which CSC Academy has started with enterprise called Total Start, which is a not-profit organization, and its primary mission is to foster entrepreneurship in underdeveloped regions as well as working in the underprivileged communities. Its mission is basically to catalyze, curate, incubate, and commercialize a lot of deep tech innovations from technology institutes of excellence, government R&D labs, and through various innovation and incubation centers. Today, we are proud that we have two eminent speakers who are with us. Dr. Srinivas Padmana Bhumi, who is an eminent engineer, an AI thought leader, entrepreneur, and working to use artificial intelligence to solve farm to fork inefficiencies and skill gaps. Academically, Dr. Srinivas was awarded the title of eminent engineer by prestigious Institution of Engineers, Kolkata. He is a PhD in artificial intelligence from University of Alberta, Edmonton, Canada, with specialization in artificial intelligence. Prior to his PhD degree, he was a student of IIT Kanpur, where he did his BTech, and he completed his MTech in computer science from IIT Bombay. His areas of interest are artificial intelligence, machine learning, software engineering, and cybersecurity. Welcome, Dr. Srinivas Padmana Bhumi. Second eminent speaker we have is Dr. Suryanil Ghosh, who is the chairman of Total EED, which is Total Start EED. Dr. Suryanil Ghosh is a dreamer, is an implementer, is a social entrepreneur, is an angel investor. He believes in enterprise ecosystems, our village level functioning, how a village level entrepreneur works, what are the daily course needs of a village level entrepreneur, and how village level entrepreneur basically works at the ground level. He's a scalable social impact enterprise development catalyst, a deep technology incubation and commercialization catalyst. Dr. Ghosh has more than 30 years of global engagement experience. I welcome Dr. Suryanil Ghosh. Thank you. Now over to Dr. Suryanil Ghosh to take the things forward. Very good afternoon, one and everyone. Really appreciate the time, and I'm glad to be connected with CSC to make this happen. We will make today's session a very basic, simple.
to give a feel, because I know the audience is many numbers of the CSCs, village level entrepreneurs who are spread across the whole country. तो हम थोड़ा हिंदी में बात करने चाहते हैं, हमें बताया गया क्या हमें हिंदी में बोलना क्या? Is that okay? Is that the right thing, right, ऋषिकेश जी? हमें little bit mix. हाँ, मिक्स करके बोलेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए. जब फ्लो में एक बार आ जाएगा तो हो जाएगा. हमें बताया हमारा टीममेट आपसे जिससे बात हो रहा था हिंदी में बात करना है, तो कभी कभी हिंदी में बात करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है इस ये टेक्निकल चीजों में. तो फिर भी हम ट्राई करेंगे. श्रीनिवास जी भी हिंदी में बात करेंगे. तो हमें पहले हम कुछ क्वेश्चन सेट किया. क्या ये सब क्वेश्चन ऐसे सेट के जैसे कोई भी बंदे को पता चलना चाहिए क्या एआई क्या है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मतलब मशीन लर्निंग क्या है, सब है क्या? ये बहुत खबर काज में आजकल सुनते रहते, क्या चर्चा हो रहा है बहुत सारा. कोई बोल रहा है ये पूरा हमारा लाइफ पूरा चेंज कर देगा, कोई बोल रहा है नहीं पता नहीं क्या होगा, हम हमारा सब काम ले लेगा, पता नहीं क्या. तो हम भी कभी साथ साथ थोड़ा हम सीनियर है श्रीनिवास जी से, हम एक ही यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, यूनिवर्सिटी ऑफ वालबारा कनाडा से. हमारा दोस्ती बहुत पुराना है, 30 साल का करीबन. तो हम जब निकाला वो तब तक घुसा वो यूनिवर्सिटी पे पीएचडी करने के लिए एआई पे. तो मैं एआई पे बहुत दिन काम किया, अली 6 साल तो काम किया पीएचडी करके. फिर हम देखा क्या आगे नहीं बढ़ रहा है कुछ, मतलब हम जो थियोरिटी हम जब पीएचडी शुरू किया 1990 गलत बढ़ रहा 1998 तो नहीं, उसका पहले 1989 पे. तब उसका पहले 30 साल पहले चर्चा खाली नहीं, बहुत काम हो रहा था एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. तो हम जब शुरू किया अबे से आगे बढ़ाना है, कुछ आगे करना है. हम जब घुसे थे एआई पे हम सोचे थे क्या हाँ ये हमारा तो दिमाग में इतना ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ तरह आर्टिफिशियल करे, देखते हैं क्या करते हैं. हाँ, तो हम सोचते देखिए ना हमारा, हम अपने बारे में खाली नहीं बोल रहे, जनरली द लैक ऑफ इंटेलिजेंस इन द होल वर्ल्ड इज, उसलिए ही हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है ना. जो भी प्रॉब्लम होता है, मारपीट करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, थोड़ा तो इंटेलिजेंस का ही कभी कम है. तो हम सोचे कि इसमें थोड़ा देखें क्या कर सकते हैं इसमें. तो हमारा पहले ही 30 साल पहले बहुत काम हुआ था, 30 साल से. तो हम बहुत सारे एरिया तब हमारा काम हुआ. थोड़ा इंडिविजुअल थोड़ा स्लो था, मतलब एक डिपार्टमेंट एआई में भी, एआई के भी अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट था, बहुत सारा डोमेन था, उसमें सब बहुत सारा आदमी अलग अलग से काम कर रहा था. कोई कर रहा था लॉजिक प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग करके उसमें थोड़ा एनालिटिक डोसा, थोड़ा फिलोसफी अर्ली फिलोसफी के साथ उसका काम है, थोड़ा मॉडलिंग में काम है, थोड़ा बेस लेवल एआई पे भी काम हो रहा था, मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन वाला, आप थोड़ा फोटो से फेस विटनेस करो. आजकल बहुत वो आगे बढ़ गया. तो धीरे धीरे वो जो पहले हुआ था बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा था तब. 1989 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. जो कुछ हमें लगे क्या हाँ चेस प्रोग्राम हुआ था, वो जीत रहा था कभी से, आर्टिफिशियल चेस प्रोग्राम. तो हमारे यूनिवर्सिटी में एक कहता था चिनूक कह के एक प्रोग्राम था जो है चाइनीज चेकर का प्रोग्राम, तो वो सबको हराता था. लेकिन इसका बारे में काफी फन थिंग था, मतलब मजेदार चीज था. इससे कुछ हिलाने वाला कुछ चीज ऐसा देखा नहीं हम लोगों ने. तो रिसर्च हो रहा था. जो 30 साल पहले 1950 का करीबन जो रिसर्च शुरू हुआ था, देखिए ह्यूमन बींग कभी भी क्या कैसे हमारा दिमाग अच्छा से समझे, हम ऑलवेज ट्राई कर रहे थे बहुत सालों से. तो हम जब शुरू किया हमारा एंगेजमेंट इन दिस एरिया, तब ज्यादा कुछ नहीं हुआ. तो उसके बाद बहुत कुछ आगे बढ़ते गया. लेकिन लास्ट 5-6 साल से हम बहुत कुछ लग रहा है हो रहा है. तो आई एम अ वेरी क्रिटिकल पर्सन अबाउट एआई, और श्रीनिवास जी है बहुत ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एआई. तो हम दोनों मिलकर थोड़ा मजा करके, थोड़ा बात करके, थोड़ा आपको सबको थोड़ा शेयर करेंगे क्या हमारा मन पे क्या है, दिमाग पे क्या है, आगे क्या होने वाला है. तो श्रीनिवास जी, डॉक्टर श्रीनिवास, आपको मेरा पहले प्रश्न है क्या एआई, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेमैन के टर्म से इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, है ना. आपसे बात हो रहा था कल, वो बोला हिंदी में करो तो बहुत प्रॉब्लम है. कृत्रिम क्या है श्री जी बताए? कृत्रिम बुद्धिमत्ता.
श्रीनी जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुनने पे भी थोड़ा हिल जाता है हम सब। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अगर हम कोई बोले तो हमें पहले सोचने पड़ेगा अब क्या बोला आदमी ने। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इतना आदमी सुन रहे हैं इसका टर्म, तो थोड़ा लेमैन भी हाँ ठीक आर्टिफिशियल ने सुना कहा। अगर हम बोले कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो उसे पता भी नहीं चला क्या बोला। तो श्रीनी जी आप थोड़ा लेमैन टर्म में बताइए ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? धन्यवाद सूर्यो। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल सभी ने सुना है, पर आजकल जो हवा चल रहा है एआई का, वो एआई का थ्योरी के बेसिस पे नहीं है, बल्कि एआई का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज हमारे लाइफ में बहुत चेंज ला रहा है। इसी कारण से एआई बहुत पॉपुलर है। सो बेसिकली आप एआई को देखेंगे तो जैसे टेक्निकली आप ट्रांसलेट करेंगे तो आइडिया ये है कि एक मशीन है, यदि वो आदमी की तरह बुद्धि प्रदर्शित करे तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है कि जब हम मशीन की बात करते हैं तो ये मशीन 3 टाइप का होते हैं। एक तो होता है कि जैसे हार्डवेयर हो गया, एक मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, रोबोट हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि एक अच्छा खासा मशीन बना देते हैं जिसमें आप थोड़ा मनी आदमी जैसा ऑटोमेशन कर देते हैं, तो उसको एआई बोलने लगते हैं। जैसे तो हम वर्ल्ड वॉर के हेलो अदर हैंड कभी कभी होता है क्या है कि केवल सॉफ्टवेयर में काम होता है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि एलेक्सा में हम बात करते हैं तो हमारा बात सुनता है एलेक्सा, फिर कमांड रेस्पॉन्स देता है। तो इस टाइप में क्या होता है कि एक मशीन है और एक सॉफ्टवेयर भी है अंदर। तो बहुत सारा टाइम क्या होता है कि जब हम मशीन की बात करते हैं, वो एक हार्डवेयर मशीन होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर बैठाया होता है जो कि इंटेलिजेंट होता है। तो बेसिकली एआई आजकल जब हम बात करते हैं वो एक मशीन जो कि आदमी की तरह बिहेव करता है, आदमी की तरह काम करता है और आदमी की तरह बुद्धि प्रदर्शित करता है। बट जब हम कहते हैं कि बुद्धि प्रदर्शन करता है तो उसका बेसिक आइडिया ये है कि बेसिकली आदमी किस हिसाब से बाकी जानवरों से अलग है। मेन कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं। जैसे हम टच कर सकते हैं, स्किन से फील कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं और सूंघ सकते हैं। तो इन पांचों जो सेंस है, 5 इंद्रियां बोलते हैं, इन 5 इंद्रियों में 3 पे आजकल एआई काम कर रहा है। ये 3 इंद्रियां हैं, बोलना, सुनना, देखना, जिससे कि पढ़ लिख सकें। बाकी 2 जो है, जैसे आप टच फील की बात कर रहे हैं, जो हमारा स्किन करता है, या सूंघ के स्मेल करते हैं, ये दोनों अभी तक एआई का परव्यू में नहीं आया है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एआई आजकल वो टेक्नोलॉजी है जो आदमियों को ये 3 सेंसेस का कैपेबिलिटी दिलाता है। तो उस कारण से अभी क्या है कि जब एआई बोलते हैं लोग, सो एआई का प्रोग्राम कोई भी हो, उसमें हमको ये बात ध्यान रखना है कि किस टाइप का सेंस कर रहे हैं हम, किस टाइप का इंद्रिया रेस्पॉन्ड करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि जब हम इनपुट कर लेते हैं, हम अपना ध्यान लगा के सुन लेते हैं कुछ, या कुछ देख लेते हैं, या कुछ
सपोज हम सुन लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है हमारे दिमाग में, उसके बाद एक रेस्पॉन्स आता है। रेस्पॉन्स कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक हम देखें कि एक एक्सरे है जो कि कैंसर का इंडिकेशन है, उसको हम देख के, हम सपोज एक डॉक्टर एक्सपर्ट है, उसको देख के हम बता सकते हैं कि उसमें कैंसर है कि नहीं। तो वही यदि सपोज वही एक्सरे एक एआई प्रोग्राम को दिया जाए, वो उसमें जैसे आदमी देख पाता है, वो देख के उसको बताता है, रेस्पॉन्ड देता है कि उसमें कैंसर है कि नहीं है। जैसे सेम एग्जांपल आप एलेक्सा का लीजिए या गूगल नाउ का लीजिए या फॉर एग्जांपल एप्पल सिरी का लीजिए, आप उसमें कुछ बोलिए तो वो सुनता है, फिर उसको समझता है क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका रेस्पॉन्स देता है। सिमिलरली आप सपोज आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे गूगल के अंदर आपने लिखा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो गूगल के अंदर एक एआई का इंजन है, वो क्या करता है, आपने जो लिखा है वो समझता है, फिर आपको रेस्पॉन्ड करता है, जो कि एक टेक्स्ट के रूप में है। तो एआई में प्राइमरीली आजकल यही 3 सेंसेस या इंद्रियों का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। जैसे हमने कहा था, एक टिपिकली होता है एक हार्डवेयर, जैसे रोबोट, उसके अंदर इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होता है, या तो कभी कभी प्योरली सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जैसे हम गूगल सर्च इंजन हो गया, वो तो प्योरली एक सॉफ्टवेयर हो गया ना, उसमें तो हम कोई हार्डवेयर नहीं दिखाते हैं। वैसे एलेक्सा हुआ या रोबोट हुआ, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रहता है। तो बेसिक आइडिया हमारा ये है कि जब भी हम एआई की बात करते हैं, हम इन तीनों इंद्रियों का मानव द्वारा जैसे काम होता है, वैसे कोई सपोज हार्डवेयर या हार्डवेयर के अंदर इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर ये काम करता है, तो तब हम उसको एआई कहते हैं। तो ब्रॉडली जैसे हम बोलते हैं उसको कृत्रिम बुद्धि, बट बुद्धि ऐसा नहीं कि जस्ट बुद्धि रहने से काफी है, इसके इस्तेमाल करके कुछ चीजें समझ के फिर उसको रेस्पॉन्स भी देना पड़ता है। तो उस हिसाब से एआई इन लेमन टर्म इज दिस। एक बार आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ श्रीनिवास जी, एक बार आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आप तो बोला कि 5 इंद्रिय जो है उसके ऊपर एआई का जो चर्चा हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसमें खाली 3 में काम हो रहा है। तो हमारा जो ये 5 इंद्रियों को जो चलाता है, मतलब हाई लेवल थॉट प्रोसेस, ये जो आप आज कर रहे हैं 5 इंद्रियों से 3 में काम हो रहा है, इसे चलाता है कौन? हमारा हाई लेवल थॉट प्रोसेस, आवर ब्रेन, माइंड। तो उसमें क्या कुछ काम हो रहा है, कुछ आगे बढ़ा? हम घुसा क्यों नहीं उस पर थोड़ा आगे बढ़ने के लिए? हम पीएचडी किया, रिसर्च किया, हम सोचा कि इस पे थोड़ा काम चर्चा करें, लेकिन हम अभी तक देखा नहीं कुछ कि उसमें कुछ अच्छा सा कुछ खासा जो आगे बढ़ा। तो आप इस बारे में थोड़ा हमारा थोड़ा समझा दिए सबको हम क्या बोलने चाहते हैं। हाँ, ये तो 5 से 3 इंद्रिय किया, वो तो देखना, सुनना, टच फील है, और आप जो भी बोला टच फील तो नहीं होता है सुनने पर भी, तो बाकी वाला जो है, जो मेन कंट्रोल इसका जो होता है 5 इंद्रियों का, थिंकिंग, हाई लेवल थिंकिंग प्रोसेस, उसमें क्या कुछ चर्चा हो रहा है? वो भी तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इन ह्यूमन बनने का, है ना? करेक्ट। तो उस हिसाब से मैं एक बात कहूंगा कि जो मैंने बात कही थी वो तो अल्टीमेट एआई के लेवल की थी, बट एक सिंपल बात है कि हमारा जो ड्रीम है कि प्योरली आदमी का जितना पावरफुल इंटेलिजेंट मशीन बनाना, बट हम जब एआई की बात करते हैं आजकल, वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। हम जब एआई की बात करते हैं, हम 3 लेवल की बात करते हैं। 3 लेवल की मतलब है कि पहला लेवल जो कि आसान है पर मुश्किल भी है, बट तीनों लेवल में सबसे आसान है, उसको हम कहते हैं वीक एआई या नैरो इंटेलिजेंस। उसको आजकल काफी भाव मिलता है। इसी में आजकल जितने भी सक्सेसफुल एआई प्रोग्राम्स देख रहे हैं हम, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इस टाइप का एआई में हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा काम, बहुत छोटा सा, उस पे हम बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं और मशीन में डाल देते हैं, तो उसमें एक पैटर्न निकाल के वो सोच पाता है कि उस काम को कैसे करना है, और वो काम इनफैक्ट सबसे बेटर
ह्यूमन बीइंग भी जो करता है वो काम उससे भी बेटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक गेम होता है चेस या गो या चेकर्स, उसमें क्या है काफी ह्यूमन चैंपियंस भी हैं जो कि ह्यूमंस बाकी ह्यूमंस को ब्रेक किए, बट उस पर्टिकुलर गेम का बहुत सारा डेटा देके एक प्रोग्राम यदि तैयार किया जाए तो वो प्रोग्राम ह्यूमन चैंपियन को भी बीट कर देगा। सेम वे सपोज आप अमेरिका में जितने रोड हैं, जितने ट्रैफिक सिंबल हैं, वो सबको आप डेटा आप यदि फीड कर दें और एक ऑटोमेटेड ड्राइवर क्रिएट करें अमेरिकन रोड के लिए, तो वो शायद अपने अमेरिकन ड्राइवर से भी बेटर ड्राइव करना शुरू करे। बट ये सब में क्या है कि दे आर वेरी गुड एट वन सिंगल टास्क, एक सिंगल टास्क बहुत अच्छा है। बट हमारा काम क्या है कि आदमी उससे भी बेहतर काम करता है। जैसे कोई यूएस में लेफ्ट हैंड ड्राइव सीख के आता है, फिर आके इंडिया में आराम से राइट हैंड फिर नेक्स्ट डे शुरू हो जा सकता है। वो कैपेबिलिटी आजकल के एआई में नहीं है। सो वो चीज कुछ दिन बाकी है, अभी 50 साल लगेगा। उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई या जनरल इंटेलिजेंस। उसका अर्थ है कि आदमी के लेवल का एआई जो कि किसी भी सर्कमस्टेंस, किसी भी एनवायरनमेंट में मैंने काम कर सकता है। उसको उतना ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन रोड पे जो ट्रेन किया गया है कार, उसको आप यूरोप में ले जाएंगे तो काम नहीं करेगा। जैसे आप कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को आप डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन किए हैं, उसका बहुत सारा डेटा लेके ट्रेन किए हैं, उसको ले जाके लंग कैंसर में काम करने बोलेंगे तो नैरो इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा। बट जनरल इंटेलिजेंस जो ह्यूमंस का कैपेबिलिटी है, मानव का कैपेबिलिटी है, वो बहुत अच्छा है। वो उससे भी काफी बेहतर है, क्योंकि हम दूसरे काम के लिए फिर से ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, आराम से अपने आप को एडजस्ट करके फिर कर लेते हैं, तो उसको जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। सो इसीलिए आपने जो पूछा कि बहुत काम हो रहा है, बट काम जो सक्सेसफुल है इन कमर्शियल टर्म्स वो इसी लेवल पे है जहां पर नैरो इंटेलिजेंस है। बट अल्टीमेटली गोल हम जो देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि जैसे आपने रोबोट मूवी देखा होगा 2.0 या फर्स्ट वाला, उसमें दिखाता है कि आदमी से भी पावरफुल है रोबोट हर काम में। वो चीज बोलते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। वो चीज शायद 100 साल और लगेगा। सो ऐसा है कि आज का जो सक्सेसफुल है, जैसे एक चेस चैंपियन हो गया, एक गो चैंपियन हो गया, चेकर्स चैंपियन हो गया, या ड्राइवरलेस कार अमेरिकन रोड पे, या तो एक पर्टिकुलर एक्सरे और कैंसर लाइक ब्रेस्ट कैंसर, ये सब आजकल के सक्सेस स्टोरीज हैं। आजकल काफी यूज भी हो रहे हैं, बट वो सभी क्या है कि नैरो एआई या वीक एआई के उदाहरण है। और ये सभी क्या है कि इस पे काफी डेटा दिया जाता है उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, और उस पे वो लोग काफी अच्छा काम करते हैं, ह्यूमन से भी बेटर काम करते हैं। बट उन पे थोड़ा भी एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो काम नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे देखा कि अमेरिका में ट्रेन किया, उसको आप यूरोप में ले जाएं तो काम नहीं करेगा वो कार। सो आपने जो कहा पार्शियली ठीक है कि उस लेवल पे अभी तक पहुंचा नहीं है, और ये बात सही है। बट क्या है कि कमर्शियल वर्ल्ड जो आजकल का जो बिजनेस वर्ल्ड है, उनको नैरो इंटेलिजेंस के ही सक्सेस स्टोरी से इतना सक्सेस मिल रहा है कि इट इज वेरी वेरी पावरफुल। उसके कारण क्या है कि बहुत सारे बिजनेस नैरो एआई को ही एआई समझते हैं, बट एआई बहुत बहुत दूर है अभी। प्योर एआई, स्ट्रॉन्ग एआई बहुत दूर है, सुपर एआई तो और भी दूर है। बट नैरो एआई इतना पावरफुल है कि काफी आदमी के काम आजकल मशीन द्वारा हो जाता है। मशीन में अच्छा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर डाल दें तो काम कर लें। कैन आई जस्ट हम एक सम अप कर सकते क्या, जो डेटा ड्रिवन हाईली प्रोसेसिंग, मतलब बहुत सारा हार्डवेयर का जरूरत है, हाई प्रोसेसिंग पावर, उस पे डेटा डालो और उससे जो क्षमता है उससे करवाओ, ये लेवल पे हमारा एआई काम कर रहा है। ठीक, करेक्ट। तो बहुत बड़ा बड़ा मशीन की जरूरत है। देखिए बात सही है। तो एक क्वेश्चन आया था कि जैसे सूर्यो सर ने कहा था कि एआई तो 40-50 साल पुराना है। एआई एक्चुअली इन्वेंट हुआ था 1956 में, 1956। किंतु आज क्यों इंपॉर्टेंट है? दो हम बात कर रहे हैं नैरो एआई की, बट नैरो एआई इटसेल्फ इतना इंपॉर्टेंट है फॉर बिजनेसेस, फॉर आवर डेली लाइफ, कि बहुत सारे काम आज एआई को दे रहे हैं हम। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल सब जब जीमेल यूज करते हैं तो आपका ईमेल पे जो आपको जो लिखना है वो भी गूगल समझ लेता है और वो आपका सेंटेंस कंप्लीट कर देता है। तो
बट आजकल क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आजकल क्या है कि 3 मेन ड्राइवर है। एक तो है कि बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब है कि बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ नहीं पाएंगे, एवरी टाइम आप गूगल में सर्च करते हैं, आप एक्चुअली गूगल को डेटा दे रहे हैं। आप एवरी टाइम मेल लिख रहे हैं तो गूगल को डेटा जा रहा है। एवरी टाइम एक गूगल का ड्राइवरलेस कार जा रहा है एक स्ट्रीट में तो कलेक्ट कर रहा है डेटा, क्या ट्रैफिक का डेटा कलेक्ट कर रहा है, सीन का डेटा कलेक्ट कर रहा है, ट्रैफिक लाइट का डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि पैटर्न बनाना, उससे इंटेलिजेंट एक्सट्रैक्ट करना, जैसे हमारे इंद्रियां करती हैं, तीनों इंद्रियां, वो काम कंप्यूटर पे कर पाते हैं। बट वो सब ठीक है, बट ये सब क्या चीप कर सकते हैं? मतलब चीप डेटा और चीप कंप्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पहले क्या है थी मैंने जब गवर्नमेंट बहुत सारा डेटा को क्रंच करना पड़ता था तो सुपर कंप्यूटर का यूज करते थे। और सुपर कंप्यूटर क्या होता था कि बहुत कॉस्टली होते थे। बट आजकल क्या है कि मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर बहुत चीप हो गए हैं और डेटा को हैंडल करना भी बहुत चीप हो गया है। तो इसके कारण चीप डेटा और चीप कंप्यूट होने के कारण क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा डेटा होने पर भी बहुत कम समय में बहुत सस्ते कंप्यूटर पे भी हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। बिग कंप्यूट का मतलब है कि बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर अभी अवेलेबल है जनता के पास, क्लाउड में या तो बहुत सारे कंपनियों के पास, जो कि इस बड़े डेटा को एनालाइज करके पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमंस, जैसे अपने तीनों इंद्रिया जैसे जैसे काम करते हैं वैसे कंप्यूटर भी कर सकते हैं। इस कारण से जबकि 20 साल पहले भी ये सब एल्गोरिथम थे, बट नैरो एआई जो कि प्योरली बहुत बड़ा डेटा पे पैटर्न एक्सट्रैक्शन का काम करता है फॉर बहुत छोटा काम, वो काम बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। जैसे कैंसर को डिटेक्ट करना है फिर स्पेसिफिक काइंड, एक ड्राइवरलेस कार बनाना है फॉर स्पेसिफिक कंट्री के लिए, या तो आप कस्टमर सर्विस के लिए एक चैटबॉट बनाना है फॉर ए बैंक, और फॉर से आईआरसीटीसी जैसे रेलवे रिजर्वेशन है उसके लिए एक कस्टमर्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका एक डेटाबेस बना के आप पैटर्न एक्सट्रैक्ट करके एक ऑटोमेटेड बॉट बना दिया वहां पर। दिशा नाम का चैटबॉट है वहां पर आईआरसीटीसी पे। तो वो क्या होता है कि सब चीज पॉसिबल है बिकॉज आपके पास बहुत डेटा है, कंप्यूटेशन चीप है और आपके पास प्रोसेसिंग भी चीप हो गया है। इसी कारण आजकल नैरो एआई बहुत पॉसिबल है, उससे बहुत सिंपल एप्लीकेशंस जो आदमी करते हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास, आप जो बोलने जाते हैं, आप बहुत सारा हमारा करीब 11 क्वेश्चन था, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे आंसर कर दिया उसी में, कोई बात नहीं, चलेगा। बात है क्या आप जो बोलने चाहते हैं, क्या एआई जो इसे कहते हैं थोड़ा ऑगमेंटेड एआई हमारा लाइफ को सपोर्ट करता है, ऑगमेंट करता है। कोई हम टाइप कर रहा है, कोई चिट्ठी उसमें थोड़ा प्रॉम्प्ट कर देता है, थोड़ा चैट पर, तो ऑगमेंट लाइफ को थोड़ा इजी कर देता है सिंपल टास्क से। और कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ चीज कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सोचिए आजकल ये जो है, हम आप जो बता रहे थे, क्या ड्राइविंग इजी हो जाएगा, ड्राइवरलेस कार हो रहा है, इनपुट दे रहा है, ये सब थोड़ा अगेन कंप्यूटेशन, हेवी ड्यूटी मशीन कंप्यूटेशन से बहुत डेटा ड्राइव करके हमें के लिए सपोर्ट कर रहा है। और आप ये भी बता रहे हैं क्या ये हाइप नहीं है, मतलब हम जब शुरू किए थे इसलिए शुरू किए थे कि हम सोच रहे थे हम रियली ह्यूमन इंटेलिजेंस करवाएंगे, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस हम थोड़ा सा सपोर्ट कर पाया हमारा रिसर्च एप्लीकेशन से, लेकिन वो थोड़ा लो लेवल एआई पे है जो थोड़ा हमारा लाइफ को ऑगमेंट करते हैं, लाइफ को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सिंपल जो मीनियल जॉब्स है वो थोड़ा हमारा इजी कर देते हैं। तो यही आप बता रहे हैं, हाइप नहीं, ये रियल है, लेकिन ये थोड़ा हम जो 54 पे हम सोचे थे, अभी भी सोच रहे कि हम वो स्टार ट्रेक में देखा आपने सब डेटा वेटा जैसे रोबोट जो पूरा ह्यूमन जैसे बात कर रहे हैं, नया स्टार ट्रेक वाला भी आप और देखेंगे क्या, ऊपर इमोशन भी आ गया। ये सब बहुत दुरुस्त है, मतलब बहुत दूर है अभी। 50 लगेगा कि 25 लगेगा कि 100 साल लगेगा, पता नहीं एग्जैक्टली। ये तो ठीक बताया ना, ये ठीक, यही तो मुद्दा। जनरल इंटेलिजेंस बहुत टाइम लगेगा, बट एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन अभी भी बहुत कॉमन है, प्रिवेलेंट है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। अच्छा, हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं ऑडियंस से। क्वेश्चन करने चाहते थे, उससे थोड़ा कोई हाथ उठाया था, हम देखा एक आदमी।
थोड़ा अभी टाइम भी बहुत हुआ, थोड़ा आधा घंटा शायद करीब बाकी है। हाँ, तो लेते थोड़ा सा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन क्या है? अभी तो देखा नहीं। एक ऋषिकेश जी, आप थोड़ा दिखाएंगे कोई कोई हाँ। क्वेश्चन तो all प्राइवेट। all of you are requested to please type your questions in the chat box so हाँ, that chat box पे दे दीजिए। so that speakers could answer. So we can continue. We'll get the questions. ठीक Then we है, can as answer. we get the questions we will carry on. So Srinivas, so there is no reason to feel threatened about AI, right? नो। हमारा काम नहीं लेने वाला है, हमारा थोड़ा मिनियल जॉब जो है, हम फॉर एग्जांपल लास्ट 3 दिन से मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ। थोड़ा कोई हमें लग रहा है कि रिपोर्ट हम ही कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत नहीं था ऐसा। शायद रिपोर्ट अगर हम एआई को दे दे, कुछ एजेंट को शायद कर पाएगा, और सिंपल मेनियल टास्क वो कर पाएगा। एक क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ, आपको पता है क्या सीएससी एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करता है आपको थोड़ा पता है वो क्या कर रहा है? आप बता सकते हैं क्या सीएससी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे एआई यूज कर सकता है, थोड़ा बताएंगे? हाँ ठीक है। तो एक्चुअली पहले मैं थोड़ा जनरल एप्लीकेशंस बता देता हूँ, उसके बाद आई विल गो टू सीएससी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ साल पहले एक वर्ल्ड में फेमस क्विज प्रोग्राम था, उसमें बीच में एक मशीन है वॉटसन करके आईबीएम का, उसने वर्ल्ड के क्विज चैंपियन को बीट कर दिया। तो ये तो प्योरली एक एआई प्रोग्राम था जो कि वर्ल्ड के क्विज चैंपियन को बीट कर दिया। बट जब लोगों ने पूछा कि इसका क्या वैल्यू है, तब आईबीएम वॉटसन ने क्या किया, आईबीएम ने जाकर अपने मणिपाल हॉस्पिटल है, तो मणिपाल हॉस्पिटल के पास जाके पूछा कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा कैंसर का। तो उन्होंने क्या किया, इसी मशीन को ले जाके कैंसर का पूरा नॉलेज गैदर करके अभी एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम बनाया जो कि मणिपाल हॉस्पिटल के द्वारा कैंसर डिटेक्ट कर सकता है। सेम वे अभी क्या हो गया कि जो इंजन है वो एआई का है, बट एप्लीकेशन जो है वो डेटा पे डिपेंडेंट है। तो उस हिसाब से आप सोचिए कि यद्यपि हम नैरो एआई की बात करते हैं, बट नैरो एआई को जो इंजन है वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे ले जाएंगे, तो जहां भी जिस टाइप का डेटा है उसमें जो भी पैटर्न एक्सट्रैक्ट करना है वो चीज हम कर सकते हैं। सो एग्जांपल ये है। वैसे आप देखे होंगे ड्राइवरलेस कार जो यूएस में अभी पायलट शुरू हो गया है, इन फिनिक्स अभी पायलट ड्राइवरलेस कार चल रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। बट और भी इंपॉर्टेंट आप सोचिए कि यदि आपके पास बहुत सारा डेटा है तो उससे आप पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि आदमी का दिमाग क्या सोच रहा है। तो फॉर एग्जांपल अभी ये वाला आप सोचिए, ये एक बहुत फेमस एग्जांपल है अमेज़न का। पहले क्या करते थे, हम ई कॉमर्स साइट में जाके एक ऑर्डर लेते हैं, फिर ई कॉमर्स साइट जैसे अमेज़न फ्लिपकार्ट हुआ, वो ऑर्डर देखते हैं क्या है, उसके बाद वो ऑर्डर फुलफिल हो गया तो जाके शिप करते हैं टू कस्टमर। बट अभी अमेज़न क्या शुरू कर रहा है, वो समझता है अपने कस्टमर का दिमाग को। उन लोग पहले जो चीज खरीदे हैं उसके बेसिस पे वो कस्टमर का एक मानचित्र बना लेता है, उसके बेसिस पे वो सोचता है कि ये आइटम एक कस्टमर खरीदने वाला है, और एक पैकेज बना के कस्टमर को भेज देता है। तो उसको कहते हैं शिप देन शॉप। उससे क्या होता है कि आपको ई कॉमर्स साइट पे लॉग इन करना नहीं पड़ेगा, ऑर्डर देना नहीं पड़ेगा, बट उससे बेटर क्या होगा कि अमेज़न आपको अच्छी तरह समझता है और आपको सामान भेज देता है। तो इसमें क्या सोचते हैं आप, इसमें क्या है कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रिटेल का है वो पूरा चेंज होने वाला है। वैसे हमारे अपने निकट एग्जांपल्स मैं कुछ देर बाद बताऊंगा, ये इंडिया के एग्जांपल्स हैं जो कि डिफरेंट एरिया में है, हेल्थ केयर में है, एग्रीटेक में है, काफी एग्जांपल्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। जैसे आप ये देखिए, ये है एक ड्रोन के अंदर एआई डाल के, जैसे आदमी देखता है वैसे इसके अंदर कंप्यूटर विजन एआई प्रोग्राम चलता है और देखता है ओएनजीसी टाइप के पाइपलाइन पे कैसे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं,
कहीं पे रिमोटली बैठ के पूरा किलोमीटर किलोमीटर ड्रोन चला के मानचित्र बना के उसके ऊपर इंस्पेक्ट करते हैं कि कोई पाइपलाइन में कहीं क्रैक हुआ कि नहीं। आप सिमिलरली जैसे आप ड्राइवरलेस कार की बात कर रहे हैं, ड्राइवरलेस ट्रक्स शुरू हो गया है। आप बैंगलोर बेस्ड कंपनी है निरामय, जो कि बहुत सारे क्लिनिक्स में अभी यूज हो रहा है। ये क्या करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सॉल्यूशन है। दिस इज बेस्ड ऑन एआई एंड इट हेल्प्स। इसमें क्या होता है कि बहुत कॉस्टली हो जाता है यदि मैमोग्राफी द्वारा करना है, बट इनका जो टेक्नोलॉजी है इससे चीप और काफी अफोर्डेबल हो जाता है। श्रीनिवास जी, या थोड़ा बताइए एक चीज, एआई और एमएल में फर्क क्या, सबको बताइए थोड़ा सा। या मैं आता हूँ, एक मिनट, एक खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं बताता हूँ, आई विल टेल यू। तो एक चीज और आपको समझ में आना पड़ेगा कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन जो देख रहे होंगे, जैसे निरामय हुआ, या तो अभी इसमें देखिए ये वाला क्या है, एक नीमो करके है जो कि रेस्पिरेटरी हाइपोथर्मिया कंडीशन देखता है। और आजकल एक्चुअली बहुत सारे गवर्नमेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट और बहुत सारे साइंटिस्ट, चाइना, यूएस, यूरोप, सभी क्या कर रहे हैं, कोविड के लिए एक एआई प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि कोविड के चेस्ट एक्सरेस लेके हाउ ऑटोमेटिकली यू कैन डिटेक्ट पोटेंशियली कोविड। दिस इज अ बिग रिसर्च। अभी एक्चुअली हैदराबाद में और एक इंटरेस्टिंग काम हुआ है। जैसे हम बोल रहे थे इंद्रियां ना, हम तो बोल रहे हैं विजन, जो कि एक्सरे हो गया, वो केवल देख के उसका एनालाइज करना। बट हैदराबाद में एक रिसर्चर क्या कर रहा है, वो खांसी जो होता है, खांसी का साउंड का एनालाइज करके न्यूमोनिया एज फॉर कोविड, उसमें कैसे खांसी होता है, उसका सिग्नेचर क्या है, उसका बेस पे भी डिटेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम बता रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर डिफरेंट सेंसेस। सो बट अभी पिछला क्वेश्चन आपने पूछा था कि जैसे सीएससी सेंटर्स है, उसमें एआई कहाँ एप्लीकेट कर सकते हैं? उसका पहले एक प्रश्न उत्तर दीजिए। हाँ, एआई सबके मतलब एआई और एमएल का फर्क क्या है? अच्छा, क्या एआई एमएल का फर्क ये है कि पहले जो एमएल होता था, एमएल क्या था कि बहुत ज्यादा डेटा दे दीजिए तो उसमें पैटर्न निकाल लेंगे। बट पहले क्या होता था कि पैटर्न होता था केवल सिंपल डेटाबेस या एक्सेल काइंड ऑफ डेटा के लिए, जिसमें क्या है कि 1000 रो हैं, 1000 कॉलम हैं, वैसे डेटा है तो उसमें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। बट आजकल क्या है, एमएल जो अपने इंद्रियां हैं उस टाइप का डेटा, जैसे आप देखते हो कुछ चीज, उसको पहचान लेते हो, इमेज देखते हो, वीडियो देखते हो, उसमें पैटर्न एक्सट्रैक्ट करना, या आप जो बात करते हो स्पीच से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, या तो आप कुछ सुनते हो उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना। तो अभी क्या है कि डिफरेंस पहले क्या था कि पहले केवल एक टैबुलर डेटाबेस डेटा पे पैटर्न एक्सट्रैक्ट करते थे, बट आजकल क्या है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं इनको। जैसे देखने वाला डेटा इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया, और बात करने वाला डेटा स्पीच हो गया, और आपका क्या बोलते हैं जो सुनने वाला हो गया, वो चीज भी आजकल आप, और लिखने वाला जो डेटा हो गया वो हो गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच अंडरस्टैंडिंग और इमेज प्रोसेसिंग विद कंप्यूटर विजन, ये तीनों जो ऐड हो गए हैं, उसके कारण क्या हो गया कि हम बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को आप पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे ही जैसे एक्सरे में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो ड्राइवरलेस कार में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम आदमी का जैसे काम करना देख पा रहे हैं। तो इसलिए पहले जो एआई था उसमें क्या था कि स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम होता था। अभी क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे पैटर्न एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आजकल का एआई इज मोर जनरल देन ओल्डर एआई फॉर प्रैक्टिकल टर्म्स फ्रॉम पीपल एप्लीकेशंस। तो अभी यदि देखें, जो पिछला क्वेश्चन था कि आपका गवर्नमेंट सर्विसेज है तो उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें देखिए डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे आपका एक चीज हो गया कि इंक्वायरी रिस्पॉन्स टाइम्स आर वेरी बैड व्हेन यू डोंट हैव सफिशिएंट सपोर्ट स्टाफ। तो इसलिए आप देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था दिशा आईआरसीटीसी का चैटबॉट, काफी कस्टमर सर्विस टास्क आजकल, जो कस्टमर्स को कोई क्वेरी हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, सभी टाइम क्या होता है कि कॉल सेंटर में जाते हैं, कॉल सेंटर में आदमी सुनता है उसको, फिर उसको रिजॉल्व करता है। तो आजकल कोई भी कस्टमर सर्विस का काम, कंप्लेंट्स हो या कोई काम करवाना हो, चाहे बैंक हो या आईआरसीटीसी हो या सिटीजन सपोर्ट सेंटर हो, सभी आजकल एआई
बेस्ड एप्लीकेशन बना के एक चैटबॉट जो कि सेल्फ सर्विस हो जाता है, क्योंकि कोई आदमी की जरूरत नहीं है। कोई कस्टमर को कोई कंप्लेंट है तो चैटबॉट से बात करना शुरू करेगा, तो चैटबॉट जो लिख रहा है उसको समझ के अंदर में डेटा रिट्रीव करके वो इंटेलिजेंस देके अप्रोप्रिएटली सॉल्यूशन सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जहां पर बहुत ज्यादा डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर सर्विस के पास आप देखिए आपके पास शायद लाखों सेंटर्स हैं। लाखों सेंटर्स में दिन में हजारों रिक्वेस्ट आते हैं, किसी का पासपोर्ट रिलेटेड हो गया, किसी का डेटाबेस आधार रिलेटेड हो गया, किसी का एड्रेस चेंज रिलेटेड हो गया। वो सब आप एनालाइज करके यदि आप पैटर्न निकाल लें, जैसे कि आपको लगता है कि इस रीजन में इस टाइप का डेटा एक्सेस नहीं होता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि तो उस टाइप का छोटा छोटा काम के लिए जहां पर वॉल्यूम कम है उनके लिए एक बॉट लगा देंगे, इंस्टेड ऑफ एक आदमी वहां पर बैठ के काम करे। जबकि जो हेवी ड्यूटी काम है उनमें आप ज्यादा आदमी लगा सकते हैं। तो उससे क्या है कि इंटेलिजेंटली आप डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट पीपल को लगा सकते हैं। दैट्स व्हाट आई से एक्सपर्ट्स का शॉर्टेज एनालाइज करना। और एग्जांपल ऑफ एक्सपर्ट शॉर्टेज मैं बताता हूँ। यदि सपोज कोई आपके अंदर में आधार का पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है बहुत अच्छी तरह समझता है, आधार पे कोई भी क्वेरी हो वो बहुत जल्दी सुलझा देता है, तो वैसा आदमी सपोज बहुत कम है आपके पास, तो उसमें क्या होता है कि बहुत लोड आ जाता है कि बहुत सारे क्वेरी आधार पे आ रहे हैं और बहुत कम एक्सपर्ट है। उसमें क्या कर सकते हैं हम कि हम एक बॉट बना सकते हैं जो कि इंस्टेड ऑफ आदमी जो आधार पे आंसर दे, एक ही आदमी एक बॉट के सहायता से कम समय में पूरा आंसर देते हैं, क्योंकि सिंपल आंसर बॉट कर दे, जो कॉम्प्लेक्स है वो आंसर करे। तो उसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट शॉर्टेज हैंडल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, टास्क जो रिपीटेटिव हो जाता है, तो उसमें चैटबॉट परफेक्ट एग्जांपल है। और लास्ट में विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज डाइवर्स डेटा एंड एनालिसिस। आपको सपोज आपका चेयरमैन है या सपोज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कुछ डेटा चाहिए कि किस टाइप का रिक्वेस्ट ज्यादा आ रहे हैं टू सिटीजन सपोर्ट सेंटर्स, किस टाइप का सर्विसेज फेथफुली हैंडल नहीं हो रहे हैं, पीपल आर नॉट हैप्पी। तो उसके लिए क्या होता है कि आप एनालाइज कर सकते हैं पूरा डेटा को एंड उसे पैटर्न निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफी काम ऑटोमेशन पे कर सकते हैं, काफी काम सपोर्ट पे काम कर सकते हैं, काफी काम इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एक्सपर्ट्स पे कर सकते हैं, और काफी काम लॉन्चिंग सेल्फ सर्विस पे कर सकते हैं। इस हिसाब से सिटीजन सर्विस सेंटर्स के लिए काफी थोड़ा इंटरप्शन कहाँ से आ गया? Go ahead, Shujot. Next question. ठीक है, श्रीनिवास जी, डॉक्टर श्रीनिवास, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू, क्विक वन। बोलिए। तो बेसिकली हम समाप्त कर रहे हैं। आप ये थोड़ा सा आप जो बताया अभी, आप बताया क्या में सिंपल चीज है, शायद वो लोग ऑलरेडी यूज कर रहा है, नॉलेज ड्रिवन चैटबॉट, वो काफी सारा जगह पे यूज हो रहा है, काफी सारा गवर्नमेंट एंटिटी भी यूज कर रहा है, बैंक तो यूज कर रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्या वो चैटबॉट को सिखाना बहुत है। कॉम्प्लेक्स आंसर्स जो वैरायटी होता है, वो आजकल जो भी चैटबॉट देखा आंसर नहीं दे पा रहे, 2-5 आंसर करने के बाद वो खत्म हो जाता है। थोड़ा जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बात है, थोड़ा बैकएंड में थोड़ा नया इंफॉर्मेशन ड्रिवन प्रोसेसिंग है, उसके साथ एनालिसिस करके आंसर देना है, वो कर नहीं पाते, वो सिखाने होता है, वो सिखाने का टाइम वो लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं, हो सकता है। और एक बात बताया क्या, जो एनालिसिस, जो डेटा बेसिकली पहले जो हम कहते थे डेटा माइनिंग करके कुछ वहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकालो और दिखाओ, रिपोर्ट बनाओ, वो थोड़ा इजी हो गया। खाली डेटा माइनिंग का रिपोर्ट नहीं, एआई का सुपिस्टम में विद एआई हम उधर कुछ स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन एआई अपने आप निकल सकते हैं ना, हमें सोचने, हमें स्पेशल क्वेरी नहीं देने पड़ेगा, वो एआई जो है सीख रहा है, वो अपने आप सीख कर अपने आप सोच कर कुछ अलग अलग से निकल देगा, जो आपका अपना सोच में नहीं है कि हाँ ये प्रश्न भी करना था, वो ऐसा निकल देगा उस लर्निंग का कैपेबिलिटी से। ये दो चीज अच्छा है, बढ़िया। एक है आपका चैटबॉट जैसे सीएससी का इकोसिस्टम यूज हो सकता है, शायद हो रहा है, हमें पता नहीं एग्जैक्टली, पूछने के बाद में। और एक हो सकता है कि आपका थोड़ा डीप लेवल एनालिसिस ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा सीएससी का सेट होता है एवरी डे, लाखों के ऊपर कुछ एजेंट, वो 100 से ज्यादा ईच एजेंट काम करते रहते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के पास होता है,
तो शायद डेटा कैप्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा तो कैप्चर हो जाता है और थोड़ा सा कैप्चरिंग थोड़ा जरूरत होता है। तो ये बात, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। So एक आदमी पूछा, बहुत सिंपलिस्टिक जी ने पूछा, नुसरत नीचे लादाख से पूछा, क्या नाम है नुसरत लादाख उनका, वो पूछा क्या हमें ये एप्लीकेशन चलाने के लिए हमें बहुत कुछ एआई सीखने पड़ेगा जो एप्लीकेशन है। तो ये तो हम ही आंसर दे देंगे, आप भी बता दीजिए। हमें तो ऐसा ही एआई एप्लीकेशन चलाने के लिए कुछ ट्रेनिंग का ज्यादा जरूरत नहीं होता, अपने आप ही सीख जाता है, सिंपल है, होता है। श्री जी आप बताइए कुछ ऐसा बारे में, आपका क्या तो अभी दो टाइप का एआई के सॉफ्टवेयर हैं। एक तो है कि जो एक्सपर्ट्स काम करते हैं, उस पे क्या होता है कि वो लोग बैठ के एल्गोरिथम लिखते रहते हैं, जैसे गूगल में हुआ या माइक्रोसॉफ्ट में हुआ। बाकी बहुत सारे लोग जस्ट एंड यूजर्स हैं। तो एंड यूजर्स के लिए अभी क्या है कि दो टाइप का एपीआई अवेलेबल है। एक एपीआई है कि आप जो एआई का मशीन लर्निंग जो पैटर्न एक्सट्रैक्शन का लाइब्रेरी है, वो एक एपीआई के रूप में अवेलेबल है। उसको आप एक पाइथन प्रोग्राम में या आर प्रोग्राम में कॉल कीजिए, फिर आपका डेटा दीजिए, वो आपको आंसर दे देगा। तो उसमें फिर भी आपको थोड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जिसमें डेटा लोड करने का प्रोग्राम लिखना है, फिर आपको फीड करने का, फिर बाद में रिजल्ट आने के बाद उसको दिखाने का। और एक टाइप का प्रोग्राम है जिसमें आप केवल डेटा दे दीजिए, बस वो अपने आप अंदर पूरा लोड पैटर्न फिर अपना ग्राफ वैफ सब बना के दे देगा। सो दो टाइप का है, एक तो हो गया थोड़ा प्रोग्रामिंग करने का, दूसरा टाइप हो गया पूरा ब्लैक बॉक्स, जो कि पूरा टूल अवेलेबल है जिसमें आप केवल डेटा दे दीजिए और आपको पैटर्न निकाल के आपका ग्राफ बना के दे देगा। तो दूसरा टाइप का टूल बहुत पॉपुलर है, जैसे आजकल टूल है जैसे वेका हो गया, जिसमें जस्ट टूल दीजिए, आप विजुअल पैटर्न निकाल देगा। बट आपका फर्स्ट वाला टाइप में क्या होगा कि आपको लैंग्वेज जानना पड़ेगा, जैसे पाइथन हुआ, आर। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका कंफर्ट लेवल है, आप एज अ ब्लैक बॉक्स पूरा डेटा इन डेटा आउट टाइप का प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैंने बताया वेका हुआ, या तो आपको एसएएस सॉफ्टवेयर हुआ, और पहला कैटेगरी में हो गया आर या पाइथन के टूल्स है जिसमें आपको थोड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। दोनों कैटेगरी अवेलेबल हैं। यदि आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं करना है तो आप वेका या एसएएस या नाइम नाइम जैसे टूल ले लीजिए। यदि आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग करना है तो आप आर या पाइथन सीख लीजिए। कोई बात नहीं, कल तो हम भी और एक सेशन करेंगे, वो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल रहेगा। उसमें जो सुनने चाहते हैं डिटेलिंग, अब थोड़ा सा 1 घंटा एक सेशन है हमारा 2:30 बजे से 3-3:30 बजे, जो थोड़ा डिटेलिंग रहेगा, थोड़ा टेक्निकल रहेगा। आज थोड़ा ओवरव्यू था। हाँ, और टाइम में ऐसा ही आगे बढ़ रहा है। अब हमारा और 12 मिनट है, थोड़ा 2-4 आपको प्रश्न कर ले। बहुत सारा प्रश्न इधर आया, तो कॉमन क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन हम देख लिया। क्या एक आदमी ने पूछा, क्या जय जी ने पूछा, या सीएससी क्या एआई या मशीन लर्निंग में कोर्स देते? शायद नहीं दे रहे, लेकिन हम सीएससी के साथ बनकर साथ लिख करके दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इतने बहुत सारा कोर्स आजकल इंटरनेट में है, वो कोई भी जाकर बेसिक चीज सीख सकते हैं। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्स में श्रीनिवास जी का अपना कोर्स है, हमने भी कोर्स करते हैं, कोई भी ऐसा कुछ बात नहीं। डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी का एक क्वेश्चन है। हाँ, with so much data, usually पूछे, with so much data being collected as part of AI applications, are these any AI related private security norms at global level? अच्छा, ये बात important है। So डॉक्टर पीयूष गुप्ता लिखा क्या हमें प्राइवेट मैसेज से, क्या जो इतना सारा कलेक्ट हो रहा है इंफॉर्मेशन, जैसे अभी आयुष जो ऐप हम शुरू किया कोविड के, डेटा सिक्योरिटी का बहुत सारा चर्चा हो रहा है। तो ये ग्लोबल लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे कुछ इश्यूज है, इतना डेटा कलेक्ट करके हमारे इंफॉर्मेशन पर्सनल प्राइवेट ले रहे। ये चैलेंज क्या है श्रीनिवास जी, आपका कंसिडरेशन, इसमें क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या कंसर्न्स है? हाँ, कोई इश्यूज है क्या? नहीं, ठीक है, एट ऑल बताइए। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस हो रहा, कोई सिक्योरिटी चैलेंज मेनली बढ़िया है। मेनली टेक्निकली आप एक बात कहते हैं, उसको कहते हैं पीआईआई,
पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, या तो आपका स्पेसिफिक एज और जेंडर और बाकी कॉम्बिनेशन हो गया, तो जिससे इंडिविजुअली कोई कस्टमर या कोई पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको PII कहते हैं। तो PII जहां भी इन्वॉल्व होता है डेटा में, तो जनरली आजकल जो AI के जो प्रोग्राम हैं उनमें एक कोशिश किया जाता है कि PII को रिमूव किया जाए और एनोनिमाइज किया जाए डेटा को, देन AI एल्गोरिथम को फीड किया जाए। वो यदि नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली जो भी कंपनी काम कर रही है वो प्राइवेसी के साथ खेल रही है, बट एट द सेम टाइम कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ कुछ इश्यूज में, जैसे एग्जांपल हो गया आजकल जैसे चाइना गवर्नमेंट यूज कर रहा है AI को कोविड को कंट्रोल करने में, कोरिया गवर्नमेंट, सिंगापुर गवर्नमेंट, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग बहुत इंट्रूसिवली हर एक फेस को डिटेक्ट करते हैं, हर एक चेक पॉइंट पे चेक करते हैं कोई सिम्टम है कि नहीं। वो क्या हो जाता है कि एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि यूटिलिटी वर्सेस प्राइवेसी। सो यदि बहुत यूटिलिटी चाहिए जबकि पूरा कंट्रोल करना है कहाँ पर कौन जा रहा है, इन्फेक्शन कौन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सब क्या है कि उससे हमको यदि बेनिफिट है तो थोड़ा प्राइवेसी को रिलैक्स कर सकते हैं, बट अदरवाइज जनरली आपको जस्ट पैटर्न जानना है तो उसके लिए तो एक बहुत स्ट्रिक्ट नो है। ओनली विद कंसेंट ऑफ द कस्टमर यू कैन यूज द डेटा। GDPR जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, यूरोप में सब में, इसमें काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है ऑन हाउ यू कलेक्ट डेटा। इंडिया में भी अभी GDPR पे काम चल रहा है, अभी तक पूरा लॉजिक लॉन्च नहीं हुआ है, बट it is very clear about what part of PII you will use for your data. तो इसके बावजूद in some cases, especially government, because of extraordinary circumstance, it may be empowered कि privacy को थोड़ा रिलैक्स करके यदि हमको बेनिफिट मिल रहा है, जैसे सेफ्टी हो गया, एनालाइज करना हो गया, या ट्रैक करना हो गया, बिकॉज कोई इन्फेक्ट हो गया और ट्रैक करे कहाँ जा रहा है, तो वो सब जानना है, तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा प्राइवेसी रिलैक्स कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गोल्डन इट्स ए गोल्डन रूल कि प्राइवेसी कभी भंग नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, बट जब यूटिलिटी डिफरेंट है, जब आपको पता लगाना है कि कोई कंटेमिनेट हो गया, कहाँ जा रहा है, और आपके पास टेक्नोलॉजी है, और तो लार्ज पॉपुलेशन की भलाई के लिए प्राइवेसी को थोड़ा छूट देना अच्छी बात है। सो आपका कॉम्प्रोमाइज होना है कि आप प्राइवेसी चाहते हैं कि यूटिलिटी चाहते हैं। तो इट्स ए वेरी, इसलिए क्या होता है कि हेल्थ केयर और इंश्योरेंस में अनलेस कंसेंट ऑफ प्रोवाइडर हो, आप डेटा इजीली ले नहीं सकते। तो AI के लिए जो डेटा होता है ऑलवेज विद कंसेंट होता है। एक बात पूछूं श्रीनिवास जी, देखिए गूगल तो पूरा इंफॉर्मेशन सबके लिए, फेसबुक के लिए पूरा इंफॉर्मेशन प्राइवेट ऑलमोस्ट, मतलब दे नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। नहीं, बट गूगल को तो आप पे नहीं करते हो। गूगल को तो आपने साइन किया हुआ है ना कि हमको सर्विस फ्री चाहिए। आपको सर्विस फ्री चाहिए तो भुगतो, आप भुगतो। यदि वो गूगल पे कर दे आप सर्विस, तो प्राइवेसी आपको रेस्पेक्ट करेगा। सिंपल है। आपको फ्री भी चाहिए और प्राइवेसी भी चाहिए, वो नहीं होता है। आप साइन कर दिया, जो डालेंगे उनका ही है, जो नहीं डालेंगे एग्जैक्टली, आपको फ्री सर्विस चाहिए, हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है। लोग तो इतना हजारों सर्वर बिठा के रखे हैं, तो मुफ्त में उनको भी तो पैसा निकालना है ना। Sir, one question is from Jaspal Singh, who is our state head in Punjab. Jaspal ji, are you there? आप पूछ लीजिए जसपाल जी। अनम्यूट कर रहा था जसपाल जी। सर गुड आफ्टरनून जी। हाँ, गुड आफ्टरनून जसपाल जी, गुड आफ्टरनून। बोलिए जी। सर मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई हमारा स्टूडेंट है या कोई करियर के लिए कुछ प्लान कर रहा है, तो क्या हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा पार्ट है जो कि हमारे को उस बच्चे को या उस पर्सन को प्रॉपर गाइडेंस दे दे कि यस आपके लिए यही सूट करता है, टू रीड देयर फाइल और एवरीथिंग। ऐसे तो बहुत सारे गाइडेंस के लिए इंस्टीट्यूट बैठे हैं, वो लोग गाइड करते हैं, वो लोग इन पर्सन गाइड करते हैं, बट टेक्निकली वो कितना राइट होता है कितना रॉन्ग होता है वो नहीं किसी को पता होता है।
तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा कुछ किया जा सकता है कि उसको करियर गाइडेंस में इसको यूज किया जाए? हाँ, इंटरेस्टिंग बिल्कुल। आप क्वेश्चन। यदि पूरा डेटा कलेक्ट कर लें, आप जितने काउंसलर हैं उन सब से बैठ के पूरा डेटा कलेक्ट कर लें और डेटा फीड करके आप एआई प्रोग्राम बना दें, तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं करियर काउंसलर। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल क्या हो रहा है कि लर्निंग ऑनलाइन हो रहा है, तो उसमें सम वेरी इनोवेटिव कंपनीज वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग n=1 एआई बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कर रहे हैं। मतलब हर एक बंदे के लिए एक क्लास नहीं होता है, बल्कि हर एक बंदा को समझ के उसका क्या पेस है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका कितना टाइम दे पाता है, कितना टाइम अटेंशन दे पाता है, उसका बेसिस पे वो जो लर्निंग सिस्टम है वो एडजस्ट करके उसका बेसिस पे उसको लेसन्स फेंकता है, क्वेश्चंस फेंकता है, वैसा है। तो उससे क्या होता है कि वो एआई ड्रिवन लर्निंग सिस्टम हो गया। वैसे इधर एआई ड्रिवन काउंसलिंग सिस्टम बना सकते हैं, यदि आपके पास बहुत सारा डेटा है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली थोड़ा रिफ्रेश करके आंसर हम भी थोड़ा दे देते जसपाल जी को। जसपाल जी पूछा क्या बहुत सारे काउंसलर्स होता है ग्राउंड लेवल पे जो स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते क्या ये लाइफ ये आपको आगे करना है, तो ये के एआई के साथ लेकर कुछ कर सकते हैं, प्रोग्राम हो ही सकता है ऐसे जो श्रीनिवास जी बोला एक प्रोग्राम ऐसे। श्रीनिवास जी ऐसे कुछ प्रोग्राम, डॉक्टर श्रीनिवास वैसे कोई प्रोग्राम है क्या अवेलेबल जो करियर काउंसलिंग कर सकता है बच्चे को लिए? आपको मेरे को देखना पड़ेगा, बट आई एम श्योर सम पीपल आर वेंचरिंग देयर, देयर मे बी सम स्टार्टअप। तो एक अगर नहीं हो तो हम एक बना सकते हैं, बिल्कुल हमारा इनोवेशन इंक्यूबेशन पे मिलकर सबको। ठीक है, और कुछ प्रश्न इधर देखा, अब टाइम तो थोड़ा होने वाला है खत्म। और ये कुछ ऋषिकेश जी? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। Hands up, and sir. Hands up, Urvashi, हाँ, hands up. Urvashi, you have a question? Urvashi. गुरनाम जी एक क्वेश्चन कर रहा है। Gurnaam ji, Urvashi. No, sir, I don't have any question. गुरनाम जी आपको थोड़ा मैं ये कर देता कि हाँ, गुरनाम जी कुछ पूछना चाहते हैं। ऋषिकेश जी आप थोड़ा गुरनाम जी को थोड़ा पूछने दीजिए। हाँ जी, गुरनाम जी पूछिए, आपने हैंड रेज किया है, शायद गलती से हैंड रेज हुआ है। अच्छा, जो चैट पे क्वेश्चन है उनको आंसर करें? हाँ जी, हाँ, थोड़ा चैट में जो क्वेश्चन है थोड़ा आंसर कर दीजिए श्री जी। ठीक है, मैं एक एक करके लिखता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बीआई एंड एनएलपी? बीआई क्या है कि पूरा एक स्ट्रक्चर्ड डेटा पे होता है। आप हिस्टोरिकली आप जितने डेटा है, सपोज 100 फील्ड है, उनका पूरा डेली डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर आप एनालाइज करते हो पैटर्न। एनएलपी क्या है कि पूरा केवल टेक्स्ट डेटा पे अनस्ट्रक्चर्ड, उसमें क्या है कि आप जैसे ट्विटर का डेटा हो गया, या एक कोई ब्लॉग कमेंट हो गया, या कोई मैंने किसी इंटरनेट पे कोई आर्टिकल लिख दिया, उसको समराइज करना है। तो एनएलपी पूरा अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा पे काम होता है, बीआई पूरा स्ट्रक्चर्ड टैबुलर डेटा पे काम होता है। तो दैट इज वेरी बिग डिफरेंस। एक क्वेश्चन था मैं देख रहा हूँ कि लाइफ में रेगुलर डे टू डे लाइफ पे क्या कुछ अप्लाई हो रहा है? हम जो रेगुलर यूज करते हैं थोड़ा टूल कुछ यूज कर सकते, कुछ आपको पता है? every time you use Google Maps, every time you use Gmail, every time you use Google Search, Google Instant, everything is AI. हाँ, Alexa is AI. Google Map यूज कर रहा है, Google Search यूज कर रहा है, वो तो AI ड्रिवन है सब। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है हेड्ज लूप करके इन हैदराबाद, वो क्या कर रहा है कि हेज फंड्स के लिए स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन कर रहा है विद एआई। ठीक है, कैंसर डिटेक्शन जैसे मैंने बताया, निरामा एक कंपनी है, वो तो स्पेसिफिक हो गया। हाँ। वो तो रेगुलर डेली यूज मतलब हो गया, ऐसे यूज ऑफ गूगल मैप, गूगल सर्च, जो प्रॉम्प्ट होता है थोड़ा रेगुलर। आज कुछ स्पेसिफिक है जो इंटरेस्टिंग है सबके लिए, जो एप्लीकेशन है जो इंटरेस्टिंग है, आप कुछ बता सकते हैं श्री जी? जैसे आजकल क्या हो रहा है कि people are creating lot of bookmarks when they search on internet etc. but यदि हम एक वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं जो कि आपका पूरा ब्राउजिंग पैटर्न देखता रहे और ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता रहे कि इधर ये है, क्या आपको ये चीज देखना है तो इधर जाइए, या आप ये चीज देख चुके हैं पहले, तो वर्चुअल असिस्टेंट फॉर पर्सनल प्रोडक्टिविटी बहुत यूजफुल चीज है।
एक लास्ट क्वेश्चन मेरा तरफ से आप डॉक्टर श्रीनिवास, 1 मिनट ही बाकी है। आम जनता के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? एआई का उसका लाइफ चेंज करेगा? आम जनता के लिए, सबके लिए नहीं, स्पेसिफिक जो कंप्यूटर यूज करता है, आम जनता जो खाली आम जनता के लिए आजकल क्या है, एटलीस्ट एक मोबाइल फोन होता है जो आजकल इंडिया में जियो के लिए डेटा एक्सेस बहुत इजी हो गया, सबके पास एक ठीक ठाक सा हैंडफोन आ गया जिसमें कुछ हो सकता है। तो अब आम जनता तो आजकल बहुत सारा जो एक्सेस हो गया है इंटरनेट के साथ, उनके लिए रेगुलर चीज क्या हो सकता है जो यूज करता है, जो एआई से हेल्प कर सकता है? एक लास्ट क्वेश्चन फिर हम तो अभी क्या है कि जब भी आप कॉमन यूसेज करते हैं, जैसे एलेक्सा या कोई यूज केस हो गया जहां पर गूगल सर्च करते हैं, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लिख नहीं पाते हो बट आप डिक्टेट करते हो और वो आपका जो बात करते हो उसको सुन के लिख देता है। तो ये सब काफी एप्लीकेशन है जहां पर कि आपका एफिशिएंसी बढ़ता है और दिस इज परफेक्ट यूज केस फॉर एआई। एक मैं व्यापक करना चाहता हूँ। एक लास्ट मेरा हम लग रहा है क्या एआई रियली सक्सेसफुल होगा इंडिया में, जब हम हमारा इतना सारा लैंग्वेज है होल इंडिया पे, जब हम एक दूसरे से बात कर सके अपना भाषा में, दूसरा आदमी सुन सके, बता सके। अगर कोई अभी हिंदी, हमारा सीएससी में बहुत सारा वीएलई है जिसे हिंदी ठीक से पता नहीं, अगर हमारा हिंदी जो हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश जो हम बोलेंगे, अगर कोई तेलुगु भाषी वो अगर इजीली हम बोलते रहे, वो हमें से ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होते सुन पाएगा, तो एक बहुत सारा इम्पैक्ट हो सकता है इसमें। दैट्स अ गुड एप्लीकेशन। मशीन ट्रांसलेशन अच्छा एप्लीकेशन है। जैसे आजकल एक सॉफ्टवेयर है live.ai, उन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस के बीच ट्रांसलेशन का सर्विस देने की कोशिश किया है। अभी भी चल रहा है। रियल टाइम वॉइस रिकॉग्निशन एंड ट्रांसलेशन। live.ai, फ्लिपकार्ट ने खरीदा उसको, live.ai। ये हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ, हो रहा है, काफी हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये अभी तक मैंने चला नहीं, रेडीमेड नहीं हुआ। मतलब इसके लिए क्या है कि अभी मैं बताता हूँ, उसके लिए प्रॉब्लम कुछ और नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे पास डेटा नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल मैं IIT हैदराबाद वाले से बात कर रहा था, प्रोफेसर जो कि इंडियन लैंग्वेज रिसर्च करते हैं, वो बताते हैं कि आप विकिपीडिया देखिए तो उसमें तो लाखों, हजारों, मिलियंस ऑफ इंडियन पेजेस हैं, और वैसे ही आप तेलुगु के पेजेस देखें, हार्डली हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हैं। तो डेटा ही नहीं है, तो डेटा बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यदि आपको ऑटोमेटेड कुछ एआई में करना है तो डेटा जरूरत है। बिना डेटा के कोई एआई नहीं है, बिकॉज हम नैरो एआई के जमाने में हैं। नैरो एआई में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इनफैक्ट 90% ऑफ एफर्ट इन एआई प्रोजेक्ट इज अबाउट डेटा कलेक्शन एंड डेटा क्लीनिंग। ठीक है, डॉक्टर श्रीनिवास, थैंक यू सो मच। आई पास इट ऑन टू मिस्टर ऋषिकेश। ऋषिकेश, 1 hour over, and please. Yeah, thank you, Dr. Srinivas. Thank you, Dr. Suryanil Ghosh, for your valuable inputs, and I think all the participants enjoyed a lot. We had a large group of participation. We are also recording this session, and all the participants, this session would be available to view on the CSC Facebook page as well as other social media accounts. So even you have missed it, you can still watch the discussions. Kindly join us tomorrow at same time, 2:30 p.m. For the part 2 of this session. Thank you, Srinivas, once again. Thank you, Dr. Ghosh. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much, everyone, and have a good day. Take care. Have a good day. Bye. Thank you, sir.